مسیح خداوند کے پاک جلالی بابرکت بے مثال پرجلال اور باکمال نام میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بہت زیادہ سلام۔ میں خداوند کا بے حد شکر گزار ہوں کہ خداوند نے ایک دفعہ پھر سے مجھے یہ موقع دیا، مجھ پر یہ فضل کیا کہ میں آپ کے درمیان خدا کے کلام کو لے کر حاضر ہو سکا۔ میرا نام پادری سنیل نسیم ہے اور میرا تعلق انوائنٹڈ لائف فاؤنڈیشن اسمبلیز لاہور پاکستان سے ہے۔ میں خداوند کی بے حد شکر گزاری کرتا ہوں کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے کلام حق کو بر وقت اپنے خدام کے وسیلہ سے بھیجتا ہے، نازل فرماتا ہے۔ کلام مقدس کو پڑھنے، سمجھنے اور سیکھنے سے پہلے ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے۔ آسمانی باپ، خداوند یسوع مسیح کے قادر نام میں ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، ہم تجھے آنر کرتے ہیں، تجھے ویلکم کہتے ہیں، تیری ساری نعمتوں، تیری برکتوں کے لیے تیرے شکر گزار ہیں جو تو نے ہماری زندگیوں میں ہمیں بخش رکھی ہے۔ اے خداوند، تیرا شکر ہو اس وقت کے لیے، تیرا شکر ہو اس موقع کے لیے، اس گھڑی کے لیے جو تو نے اپنے لوگوں کی زندگیوں میں بخشی ہے، اور جتنے لوگ اس زندہ پیغام کو، اس زندہ کلام کو سنیں، وہ خداوند تجھ سے برکت کو پا سکیں، وہ کلام حق پر عمل کر کے تیرے سچے پیروکار ٹھہریں، اور خداوند تیرا کلام محض اپنے تک ہی محدود نہ رکھیں بلکہ دوسروں تک پہنچانے والے ہوں۔ یسوع مسیح کے قادر، جلالی اور بابرکت نام میں ہم نے مانگ لیا اور پا لیا ہے، آمین آمین۔ میرے عزیزو، نکالیں میرے ساتھ کلام خدا میں سے، نئے عہد نامہ میں سے پولس رسول کا افسیوں کی کلیسیا کے نام خط، اس کا 6 باب اور اس کی 10ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت کے اختتام تک۔ حوالہ دوبارہ سماعت فرمائیں۔ پولس رسول کا افسیوں کی کلیسیا کے نام خط، اس کا 6 باب اور اس کی 10ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت کے اختتام تک۔ کلام خدا میں کچھ یوں مرقوم ہے: غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کسی پر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے جاگتے رہو تاکہ مقدسوں کے واسطے بلا ناگہ دعا کیا کرو۔ کلام پاک کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، ایک بڑی پیاری کوٹیشن ہے جو کہ میں نے ریسنٹلی پڑھی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ کوٹیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ کوٹیشن کچھ یوں ہے: اٹ ڈزنٹ میٹر
where you are coming from. It doesn't matter where you are coming from. All that matters is where you are going. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किधर से आ रहे हैं, आपकी बैकग्राउंड क्या है, आप गरीब घराने से हैं, आप निजात याफ्ता घराने से हैं या नहीं। सारा फर्क इसी से पड़ता है कि आप किधर को जा रहे हैं। फैसला आपने करना है। मेरे अज़ीज़ों, 2025 के शुरू से लेकर अब तक खुदावंद ने हमें संभाला है। गुज़श्ता दिनों में, महीनों में, सालों में हमारी ज़िंदगियों में खुशगवार, अच्छे और यादगार पल आए हैं। यकीनन ये खुदावंद की मेहरबानी, यकीनन ये खुदावंद का फजल है जो हमारी ज़िंदगियों पर हुआ। लेकिन इसी के साथ साथ मनफी, मुश्किल और कठिन दुश्वार वाक़यात भी हमारी ज़िंदगी में आए हैं। माजी बड़ा अहम है, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, अगर आप माजी में ही जीते रहेंगे, अगर आप माजी को थामे रखेंगे, अगर आप माजी को भूलेंगे नहीं, माजी में ही रहेंगे, तो आप आज अपने प्रेजेंट में जो है कभी भी खुशहाल, शादमान और खुश नहीं रह सकेंगे। माजी से चिमटे रहना, उसको छोड़ ना पाना हमें एक जगह स्टक कर देता है। सो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम इस वक्त में जो कि खुदावंद ने हमें दिया है, जो कि खुदावंद की हुजूरी में हम बैठे हुए हैं, खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए, खुदावंद के मुंह की बातों को सुनने के लिए, तो बड़ा ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम पर गौर करें। भूल जाएं सारी फ़िक्रों को, भूल जाएं सारे कामों को इस वक्त में, और ख़ास तौर पर अपनी निगाहें खुदा के कलाम की तरफ लगाएं इस वक्त, क्योंकि इब्लीस नहीं चाहता कि आप जो है उसके कलाम पर ध्यान करें। मेरे अज़ीज़ों, कोई ना कोई, हर कोई, बल्कि यूँ कहना मुनासिब होगा कि हर कोई आज के दौर में किसी न किसी जंग का शिकार है, किसी न किसी मुश्किल का शिकार है, किसी न किसी परेशानी का शिकार है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, कलाम हमें आज क्या सिखाता है जंगों की सूरतों, जंगों की सूरत हाल के बारे में, जंगों के बारे में कलाम हमें क्या सिखाता है। आज के मेरा टॉपिक है रूहानी जंग। पहले नंबर पर हम बात करेंगे कि हमने जंग जो है कैसे लड़नी है, हमने जंग किसके खिलाफ लड़नी है, हमने जंग किसके साथ लड़नी है। मतलब कि कौन से वेपन्स हमारे होंगे जो कि जंग में हमारी मदद करेंगे। पहले सवाल का जवाब ये है कि हमने जंग जो है कलाम अक़दस के मुताबिक, हमारी जंग खून और गोश्त से नहीं है। खून और गोश्त से मुराद है हमारी जंग किसी इंसान से नहीं है, हमारी जंग इब्लीस के साथ है, हमारी जंग शैतान के साथ है जो कि खुदा का नाफरमान रहा है और झूठों का बाप है बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक। दूसरे नंबर पर हमने जंग किस से लड़नी है, हमारे हथियार क्या होंगे। हम आगे चलकर देखेंगे कि हमारे हथियार जो है कौन से होने चाहिए। चाहे आज हालात मुश्किल ही क्यों ना हो, वाक़यात, तजर्बात, कोई भी बात मुश्किल है आज, जंग की सूरत में है आज, बीमारी की सूरत में है आज, कर्ज़े की सूरत में है आज, तो हौसला रखें। खुदावंद आपकी जंग लड़ने के लिए आपको तैयार कर रहा है। खुदावंद ये चाहता है कि उसका बेटा, उसकी बेटी सुरखरू हो, कामयाब हो, कामरान हो, फतह से बढ़कर गलबे को ले सके। शायद आप में से कोई अपनी ज़िंदगी में पौलुस रसूल इफिसियों के ईमानदारों को ये चैलेंज देता है, और 2025 में आज ये चैलेंज मेरे और आपके लिए भी है। और इसी चैलेंज में एक खुशखबरी भी है। वो कहता है कि खुदावंद में और उसकी कुदरत के ज़ोर में मजबूत बनो। ये चैलेंज वो देता है। मजबूत हमने बनना है, ज़ोर हमने लेना है,
لیکن جنگ جو ہے ہم نے اپنے بلبوتے پر، اپنی قوت سے، اپنے ارادے سے نہیں لڑنی۔ بڑی بات یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جنگ خداوند کی دی ہوئی قوت سے ہم نے لڑنی ہے، اس کے دیے ہوئے اختیار سے ہم نے لڑنی ہے۔ اگر ہم اپنی قوت سے جنگ لڑنے کی کوشش کریں گے تو ہم ناکام بھی ہو سکتے ہیں، ہم ناکامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ ہو بھی سکتا ہے کہ ہم کامیاب بھی ہو جائیں، لیکن زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ آپ ناکام ہوں گے۔ سو اس کا بہتر حل یہی ہے کہ ہم اپنی جنگوں میں خداوند یسوع مسیح کو، خدا کے پاک روح القدس کو دعوت دیں کہ وہ آپ کی ہدایت اور رہنمائی کرے، وہ آپ کے قدموں کو جو ہے ہموار رستوں پر لے کر جائے، وہ آپ کو بتائے، بر وقت گائیڈ کریں، تاکہ آپ جنگوں میں ہارے نہ، جنگوں میں ابلیس سے شکست نہ کھائیں، بلکہ آپ سرخرو، کامیاب اور کامران ہو سکیں۔ اور یقیناً جب آپ ایسا کریں گے تو آپ ایک قوت کو محسوس کریں گے، آپ ایک طاقت کو محسوس کریں گے، آپ ایک ہمت اور حوصلے کو محسوس کریں گے۔ سو اگر آج ہم میں سے کسی کو بھی کسی بھی چیلنج کا سامنا ہے تو پیغام یہ ہے کہ خداوند میں مضبوط بنتے جاؤ، خداوند کا زور لیتے چلے جاؤ۔ اور زور کیسے لینا ہے؟ ہم نے دعا میں بیٹھنا ہے۔ زور کیسے لینا ہے؟ ہم نے کلام میں مقدس کو پڑھنا ہے۔ زور ہم نے کیسے لینا ہے؟ خداوند کے الہام کو اپنے اوپر لینا ہے، اس کی پروٹیکشن کو اپنے گھروں پر، اپنے زندگی پر، اپنے بال بچوں پر، اپنی فیملی پر ڈکلیئر کرتے رہنا ہے۔ میرے عزیزو، اگر گزشتہ مہینوں میں، سالوں میں آپ اپنے زور سے مضبوط بننے کی کوشش آپ نے کی ہے تو میرے عزیزو اس سے توبہ کریں، کیونکہ آپ اپنے زور سے کچھ نہیں کر سکتے۔ کلام اقدس میں لکھا ہے کہ یہ نہ زور سے، نہ طاقت سے، نہ توانائی سے، بلکہ خدا کے روح سے ممکن ہے۔ آپ اپنی جنگوں میں اس وقت تک جو ہے کامیاب نہیں ہو سکیں گے جب تک آپ خداوند کو انوائٹ نہیں کریں گے، جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے کہ خداوند میری جنگیں تیری ہیں، تو مجھے زور دے، تو مجھے قوت دے، تو مجھے توانائی دے تاکہ میں یہ جنگ جیت سکوں۔ 11ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو۔ غور کیجئے گا، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے سب ہتھیار باندھ لو۔ پولس رسول، خدا کا خادم، مرد خدا، یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، چونکہ ہم خدا کے لوگ ہیں اور خدا نے اپنا زور ہمیں بخشا ہے اور خدا ہمیں مضبوط بناتا ہے۔ اس لیے جس جنگ میں ہم اس کے ساتھ شریک ہیں، ضروری ہے کہ اس کے ہتھیار بھی ہمیں درکار ہے، ضروری ہے اس کا زور ہی ہمیں درکار ہے، اس کی گائیڈنس بھی ہمیں درکار ہے۔ بطور انسان ہم اکثر اوقات اپنے ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہیں، اپنے اوزاروں کا استعمال کرتے ہیں، اپنے منصوبوں کا استعمال کرتے ہیں، اپنی چلاکیوں سے، اپنی حکمت عملی سے اپنی لائف کی جنگ لڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن پولس رسول کہتا ہے کہ کلیسیا، خدا کے لوگوں، غور کرو، زندگی میں فتح گواہی دینا چاہتے ہو تو خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، کیونکہ فتح، زبور نویس یہ کہتا ہے کہ جنگ کے لیے گھوڑا تو تیار کیا جاتا ہے، لیکن فتح خداوند کی طرف سے آتی ہے۔ میرے عزیزو، میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے مخاطب ہوں، میری بہن، میرے بھائی، میرے بچے، میرے لوگ، خدا کے لوگوں، کہ آپ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، آپ مضبوط بنو، آپ ہمت کرو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لیں۔ ہتھیار کون سے ہیں؟ آگے ہم 14ویں آیت میں دیکھتے ہیں، بس سچائی سے اپنی کمر کس کر، دوسرے نمبر پر راست بازی کا بختر لگا کر، تیسرے نمبر پر پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر، چوتھے نمبر پر ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس سب شریر کے جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ ان ہتھیاروں پر غور کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہتھیار جو ہے ہم نے کیوں باندھ رہے ہیں، کیا ضرورت پیش آ گئی ہتھیار باندھنے کی۔
मेरे अज़ीज़ों, ज़रूरत ये पेश आई कि हम ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। अगर आप कायम रहना चाहते हैं, दूर तक जाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में फ़तह हासिल करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आप खुदा के सब हथियार बांधें। और दूसरे नंबर पर हम बुरे दिन में कायम रह सकें, बुरे दिन में इब्लीस का मुकाबला कर सकें। बुरा दिन कौन सा है? बुरा दिन आजमाइश का दिन हो सकता है, बुरा दिन इम्तिहान का दिन हो सकता है, बुरा दिन बीमारी का दिन हो सकता है, बुरा दिन किसी मुश्किल का दिन हो सकता है। अगर आप खुदा में मजबूत और पेवस्त नहीं हैं, तो मेरे अज़ीज़ों, आप उस बुरे दिन में गिर जाएंगे। आप उस बुरे दिन में मुकाबला नहीं कर सकेंगे, आप में मुकाबला किताब नहीं होगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप खुदा के सब हथियार बांध लें। और तीसरे नंबर पर तीसरा मकसद है कि सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सकें। आज हम देखते हैं कि हमारे काम हम शुरू तो करते हैं, लेकिन पाया तकमील तक नहीं पहुंचा पाते। वो इसलिए क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से जंगें लड़ते हैं, अपनी हिकमत अमली से जंगें लड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे जो कलाम में ये बताता है कि हमने अपनी मर्ज़ी से, अपनी क़ुव्वत से जो है जंगें नहीं लड़नी, बल्कि खुदावंद की मर्ज़ी से लड़नी है। गौर कीजिएगा कि यहाँ पर जो है 6 हथियारों का जिक्र है, जो पौलुस रसूल ने इफिसियों की कलीसिया के नाम जो ख़त लिखा, उसके 6 बाब और उसकी 14वीं से लेकर 18वीं आयत में इन 6 हथियारों का जिक्र है। इन 6 हथियारों में से सिर्फ एक हथियार ऐसा है जिससे कि हम वार कर सकते हैं, वो है खुदा का कलाम। खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश करने पहुंचा तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने इख्तियार का इस्तेमाल किया, अपने हथियार का कलाम अक़दस से उसको जवाब दिया और उसको शिकस्त दी। सो उसी नमूने पर अमल पैरा होते हुए जब कभी भी आप पर मुश्किल दिन आए, जब कभी भी आप पर परेशानी का दिन आए, तो आप भी खुदा के कलाम से अगर भरे होंगे, आप भी अगर खुदा के इल्हाम से भरे होंगे, तो आप भी जो है खुदावंद के नाम से उस जंग को जीत सकेंगे। सो बड़ा ज़रूरी है कि हमारे अंदर कलाम हो, बड़ा ज़रूरी है कि हमारे अंदर खुदावंद यीशु मसीह की फ़तह से भरा कलाम हो। बाकी के जो हथियार हैं वो खुदा ने डिफेंस के लिए दिए हैं, हिफाजत के लिए दिए हैं। पर सच्चाई से अपनी कमर कस कर, रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ ईमान के सिर पर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बजा सको और नजात का खुद, सल्वेशन का हेलमेट, नजात का खुद, कलाम कह रहा है नजात का हेलमेट सर पे पहनते ताकि सर महफूज रह सके, क्योंकि सर है जो कि सेंटर है बॉडी का। अगर यहाँ पर कोई तीर लग गया तो कहानी ख़त्म। लेकिन कलाम ये कहता है कि नजात का खुद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। पैगाम ये है कि हमारा दुश्मन नहायत सरगर्म है, मसरूफ़ है। किस लिए? ईमानदारों को गिराने के लिए, तबाह करने के लिए। लेकिन दूसरी बात इसमें यह है, खुशखबरी, हौसले और तसल्ली की बात इसमें यह है कि वो चाहे कितना भी सरगर्म क्यों ना हो, कितना भी चालाक, होशियार, चालबाज क्यों ना हो, खुदा के कलाम में, वाहिद हथियार में इतनी कुव्वत है कि वो दुश्मन के सारे मंसूबों को तय कर सकता है, दुश्मन के सारे मंसूबों को फना कर सकता है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने घरों में मज़हबों को बनाएं। बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने घरों में मज़हबों को कायम करें, दुआ को कायम करें, ताकि हम उस वक्त में, उस घड़ी में खुदावंद से ले सकें और उसकी कुव्वत से लैस हो सकें, उसके ज़ोर में मजबूत बन सकें। और जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो खुदावंद यकीनन हमें फ़तह भी देता जाएगा। जब हम खुदा की हजूरी में डेली बेसिस पर आएंगे तो यकीनन खुदावंद हमसे बात करेगा, हमसे कलाम करेगा, हमें तक़वीयत देगा। हम अगर मुश्किल हालात में भी क्यों ना हो तो खुदावंद फिर भी हमारे साथ रहेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर ये जंग जीत ली है। उसने मौत, कब्र पर फतह पाई है। इब्लीस के सारे मंसूबों को उसने
तहतीक कर दिया, ख़त्म कर दिया है, और हम एक ऐसे दुश्मन के ख़िलाफ़ जंग में हैं, शामिल हैं, जो कि ऑलरेडी हारा हुआ है। और खुदावंद का कलाम हमें ये तक़वियत देता है कि हिम्मत में, ज़ोर में मजबूत बनते जाएं, खुदावंद से ज़ोर रोज़ बरोज़ लेते चले जाएं। और कलाम ये कहता है 18वीं आयत में, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। आज पौलुस रसूल ये कहता है कि हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। आज हम क्या करते हैं? हम रूह में दुआ और मिन्नत करने के बजाय हर वक्त और हर लम्हा टीवी चलता है हमारे घर पर, हर वक्त हर लम्हा कार्टून चलते हैं, हर वक्त हर लम्हा रील्स चलती हैं, हर वक्त हर लम्हा हम फेसबुक पर लाइव रहते हैं, हर वक्त हर लम्हा हम व्हाट्सएप पर लाइव रहते हैं, चैटिंग करते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ो, कलाम हमें क्या बता रहा है 18वीं आयत में? कि हर वक्त और हर लम्हा हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, और इसी घर से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। आज आप देखें, आप अपने पासबान के लिए, आप अपने निगहबान के लिए कितनी दुआ करते हैं, कितने मिनट आप दिन में डेली बेसिस पर उनके लिए निकालते हैं। अगर आप नहीं करते तो मैं खुदा का खादिम होते हुए आपसे इल्तमास करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ अपने खादिम के लिए, अपने चरवाहे के लिए, अपने निगहबान के लिए, बल्कि खुदा के खादिम के लिए आप ज़रूर दुआ किया करें, ताकि खुदावंद उसको ज़ोर में, क़ुव्वत में, इख्तियार में मजबूत बनाता चला जाए। सो मेरे अज़ीज़ों, हमने आज सीखा कि हमने जंगें अपने ज़ोर पर नहीं लड़नी, अपने ज़ोर से नहीं लड़नी। दूसरे नंबर पर हमने सीखा कि हमने इब्लीस के साथ जंग करनी है, ना कि इंसान के साथ। मसला उस वक्त आता है जब हम इंसान के साथ जंग करते हैं। कलाम ये क्या कहता है? यूहन्ना की इंजील में खुदा ने फरमाया कि खुदा ने इब्तिदा से दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदा ने तो इंसान से प्यार किया, लेकिन आज का इंसान से प्यार नहीं करता। वो इंसान से जंग करता है और शैतान के साथ यारी लगा लेता है। सो इसलिए अपने तरीक़ाकार को दुरुस्त करें, अपने आप को देखें, रूह में सारे हथियारों को बांधें और इब्लीस का मुकाबला करें। कलाम ये कहता है कि अगर इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। सो मेरे अज़ीज़ों, अपने हथियारों का इस्तेमाल करें, इब्लीस का मुकाबला करें, रूह में ज़ोर पाते चले जाएं, क़ुव्वत पाते चले जाएं, इब्लीस पर फतह हासिल करते चले जाएं, और एक फ़तहमंद क्रिश्चियन होते हुए, फ़तहमंद मसीही होते हुए खुदावंद यीशु मसीह के नाम की मुनादी करें, उसके नाम का प्रचार करें। सो खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे, और आपको मजबूत रहने की और खुदा के सब हथियारों को बांधने की मेरी ये दुआ है कि आपको खुदावंद तौफीक दे, आपको खुदावंद हिम्मत दे, आपको खुदावंद ताकत दे, ताकि आप मजबूत रह सकें, आप इख्तियार में, क़ुव्वत में और खुदा के हथियारों के साथ लैस रहें। और मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको जो है इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।